Hello, good afternoon. This is Shresi Tiwari, a student of DMLT 22 batch from Apex Paramedical Institute. Today, I am presenting a topic through the PowerPoint presentation, Endocrine System. The topic contents in the presentation are Introduction, Endocrine System, Key Components, Endocrine Glands, Pituitary, Thyroid, Adrenals, Pancreas, and Gonads. Introduction. The endocrine system is a complex network of glands and organs that produce and release hormones to regulate various bodily functions and maintain homeostasis. Unlike the nervous system, which uses electrical signals to transmit information quickly, the endocrine system relies on chemical messengers called hormones. तो फर्स्ट थिंग इज कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है कुछ ग्लैंड्स का और ऑर्गन्स का जो कि प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज करते हैं हार्मोन्स जो कि हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और मेंटेन करते हैं हमारे बॉडी का होम्योस्टेसिस। जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज़ करता है, बट हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल मैसेंजर्स का यूज़ करता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, और इन केमिकल मैसेंजर्स का नाम है हार्मोन्स। तो की कंपोनेंट्स ग्लैंड्स, हार्मोन्स और फीडबैक मैकेनिज्म। What is endocrine system? The endocrine system is made up of glands and hormones they secrete. Although the endocrine glands are the primary hormone producers, the brain, lungs, heart, liver, skin, thymus, gastrointestinal mucosa, and the placenta also produce and release hormones. तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कुछ ग्लैंड्स से मिलकर बना होता है जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा भी हमारे बॉडी जो है अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रीट करती है और प्रोड्यूस भी करती है, जैसे कि हमारा ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, स्किन, थाइमस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा और प्लासेंटा के थ्रू। की कंपोनेंट्स of endocrine system are glands, hormones, feedback mechanism. तो glands जो है हमारे endocrine system जो है several glands को include करती है जो कि हमारी body में located होती हैं various positions पे, various locations पे, such as pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland, pancreas, and reproductive glands that are ovaries and testes. Second is hormones. The hormones are molecules produced by endocrine glands that travel through the bloodstream to target cells or organs where they elicit specific responses. Hormones regulate processes such as metabolism, growth and development, reproduction, stress response and mood. तो hormones जो हैं हमारी बॉडी में they are molecules that are produced by endocrine glands जो कि हमारे बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करते हैं और हमारे टारगेट सेल्स पे या टारगेट ऑर्गन्स पे तक पहुंचते हैं और उनसे एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को जनरेट या फिर एलिसिट कराते हैं। हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी के वेरियस फंक्शंस को, प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, सच एज मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, reproduction, stress response and mood. The third is feedback mechanism. Hormone secretion is regulated by feedback mechanism, include negative feedback loops that maintain hormone levels within a narrow range. When hormone level rise above or fall below the optimal levels, feedback mechanism trigger adjustments to restore balance. हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है ये एक रेगुलेटेड होता है फीडबैक मैकेनिज्म में के द्वारा। हमारे हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में एक नैरो रेंज के विद इन ही रहते हैं। तो जब हमारे बॉडी में अगर इन हार्मोन्स का लेवल राइज करता है या फॉल करता है तो हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये ट्रिगर करता है और इनके लेवल्स को एडजस्ट करता है ताकि हमारा बैलेंस जो है वो फिर से रिस्टोर हो सके। फीडबैक मैकेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक लूप
एक पॉजिटिव फीडबैक लूँ। नेक्स्ट आता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमारे बॉडी के मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड एंड पेनक्रियाज। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको हम लोग ऑफन रेफर करते हैं मास्टर ग्लैंड भी। इट इज अ स्मॉल pea sized gland located at the base of the brain just below the hypothalamus. Despite its small size, the pituitary gland plays a crucial role in regulating various bodily functions by producing and releasing several hormones. अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के ओरिजिन की बात करें तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। इसकी पार्ट्स की बात करें अगर तो पोस्टीरियर पार्ट में आता है हमारा इनफेंडिबुलम एंड पार्स नर्वोसा, और एंटीरियर पार्ट में की बात करें तो आता है हमारा पार्स डिस्टालिस, पार्स ट्यूबरालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। लोकेशन तो हमारा जो पिट्यूटरी होता है ग्लैंड है ये लोकेटेड होता है हमारे बेस ऑफ द ब्रेन जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस विद इन अ बोनी स्ट्रक्चर। मतलब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक बोनी स्ट्रक्चर के विद इन प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं सेला टुर्सिका। इसकी फंक्शंस की बात करें तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, भले ही इसके साइज बहुत छोटी होती है तो क्या। और जैसे कि हमारे बॉडी के सारे ही अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट या कंट्रोल करने का काम हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसके फंक्शंस में आता है और रिप्रोडक्शन भी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में दो मैंने बताया, पोस्टीरियर एंड इंटीरियर। तो पोस्टीरियर में हमारा आता है इनफेंडिबुलम जिसे स्टॉक भी कहते हैं, जो द स्टॉक जिससे कि हमारा पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के नीचे कनेक्टेड होता है। और पोस्टीरियर पार्ट में सेकेंड आता है हमारा पार्स नर्वोसा, और एंटीरियर में हमारा आता है पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स नर्वोसा से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो है एडीएच और ऑक्सीटोसिन। पार्स डिस्टालिस से टीएसएच, जीएच, एलएच, एफएसएच, पीआरएल, एसीटीएच। और पार्स इंटरमीडिया से रिलीज होने वाले हार्मोन्स एमएसएच। पार्स नर्वोसा में जो हमारे हार्मोन्स हैं ये यहाँ पर बनते नहीं बट सिक्रीट और स्टोर यहीं से यहाँ पे होते हैं। रेस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो हैं पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया के ये पिट्यूटरी में ही बनते हैं, स्टोर होते हैं और रिलीज भी होते हैं। नेक्स्ट हमारी ग्लैंड है थायराइड। तो थायराइड की बात करें तो ये बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है जिसमें कि दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं और बीच में एक नैरो टिश्यू के बैंड से ये दोनों लोब्स जो है कनेक्टेड होते हैं जिनको हम कहते हैं इस्थमस। तो अगर ओरिजिन की बात करें तो हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो एंडोडर्मल ओरिजिन का है। लोकेशन और स्ट्रक्चर की बात करें तो लोकेशन इसकी इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया जस्ट बिलो दी लैरिंग्स। और इसके शेप की बात करें तो बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है जिसमें कि दो लोब्स प्रेजेंट होते हैं और कनेक्ट होते हैं बाय अ नैरो बैंड ऑफ टिश्यू कॉल्ड द इस्थमस। इसके फंक्शंस की बात करें तो इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोड्यूस द हार्मोन्स थायरोक्सिन T4, थायरोआइडोथायरोनिन T3 एंड कैल्सिटोनिन जो कि रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन एंड द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यू। तो इसके प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो हमारा हार्मोन्स, इन तीन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना है। थायराइड हार्मोन्स जो हैं हमारे बॉडी के वर्चुअली एवरी सेल को इन्फ्लुएंस करते हैं and are essential for growth, development and maintenance of normal physiological functions. थायराइड जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है इनमें तीन हार्मोन्स हैं, थायरोक्सिन T4, ट्राईआइडोथायरोनिन T3 एंड कैल्सिटोनिन। रेगुलेशन की बात करें तो the production and release of thyroid hormones are regulated by feedback mechanism involving the hypothalamus, pituitary and thyroid gland.
तो हमारा जो थायराइड के हार्मोन्स हैं इनके प्रोडक्शन और रिलीज जो है रेगुलेट होता है फीडबैक मैकेनिज्म में के थ्रू, जिसमें कि हमारा इंक्लूड होता है या इन्वॉल्व होता है हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड. The TRH and TSH from hypothalamus and pituitary respectively regulates the production and release of thyroid hormones. तो the TRH हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला TRH और पिट्यूटरी से आने वाला TSH जो है, ये दोनों ही हमारे थायराइड के हार्मोन्स के प्रोडक्शन को और रिलीज को रेगुलेट करते हैं. और रोल इन मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो the thyroid hormones play a central role in regulating metabolism by influencing the rate at which cells convert oxygen and calories into energy. मतलब हमारे बॉडी में जो थायराइड हार्मोन्स है एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में. और बाय इन्फ्लुएंसिंग मतलब हमारे द रेट जिससे कि हमारे सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन और कैलोरीज को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनके रेट को इन्फ्लुएंस करके. तो दे अफेक्ट प्रोसेसेस, मतलब हमारे जो थायराइड हार्मोन्स हैं ये कौन कौन से प्रोसेसेस को अफेक्ट करते हैं. दे आर बेसल मेटाबॉलिज्म रेट BMR, प्रोटीन सिंथेसिस, lipid metabolism and carbohydrate metabolism. Disorders. The dysfunction of thyroid gland can lead to various disorders including hypothyroidism, hyperthyroidism and thyroid nodules. तो hypothyroidism, hypo means कम, तो hypothyroidism means थायराइड के हार्मोन्स में कमी. hyperthyroidism means थायराइड हार्मोन्स की इंक्रीमेंट या फिर थायराइड हार्मोन्स का इंक्रीज फ्रॉम द ऑप्टिमल लेवल. एंड थायराइड नोड्यूल्स मीन्स थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन. नेक्स्ट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो आता है हमारा एड्रीनल ग्लैंड. The adrenals are a pair of triangular shaped endocrine glands located on top of each kidney. मतलब हमारी जो एड्रीनल्स हैं ये दो होती हैं इन नंबर और दे आर ट्रायंगुलर शेप्ड, जो कि हमारे दोनों किडनी के टॉप पर प्रेजेंट होती हैं. अगर ओरिजिन की बात करें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन का है एंड एड्रिनल मेड्यूला जो है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन से है. लोकेशन और स्ट्रक्चर की बात करें तो द एड्रिनल्स आर सिचुएटेड अटॉप ईच किडनी रिजेंबलिंग अ फ्लैटेंड पिरामिड. हमारा जो एड्रिनल है ये हमारे किडनी के दोनों ही किडनी के टॉप पर प्रेजेंट होता है और इनका शेप जो है एक फ्लैटेंड पिरामिड से रिजेंबल करता है. Each adrenal gland consists of two distinct regions, the outer adrenal cortex and the inner adrenal medulla. हमारे जो adrenal gland है इसमें दो distinct regions होते हैं, बाहर का portion adrenal cortex और अंदर का portion adrenal medulla. Parts. Adrenal cortex. The adrenal cortex is the outer layer of adrenal gland and is responsible for producing steroid hormones called corticosteroids. हमारे जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ये आउटर लेयर होती है एड्रिनल ग्लैंड की और इस यहाँ ये रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेरॉइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन में, जिनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं. और अगर इसकी फर्दर बात करें तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन्स. जोना ग्लोमेरुलोसा फर्स्ट जोन है, सेकेंड जोना फेसिकुलेटा और थर्ड जोना रेटिकुलरिस. ये 3 जोन्स होते हैं प्रेजेंट हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स में. तीनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंथेसाइज करने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ हार्मोन. तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स या फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को सिंथेसाइज करता है, जिसको एल्डोस्टेरॉन कहते हैं. फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा जो है हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या फिर कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करता है, सिंथेसाइज करता है. कॉर्टिसोल जो है एक लाइफ सेविंग हार्मोन है क्योंकि ये इम्यून सप्रेसर होता है इसलिए. और जोना रेटिकुलरिस ये एंड्रोजन्स को रिलीज करता है, सेक्स हार्मोन. नेक्स्ट आता है हमारा एड्रिनल मेड्यूला. तो द एड्रिनल मेड्यूला इज द इनर पोर्शन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड बीनीथ द एड्रिनल कॉर्टेक्स.
हमारा जो एड्रिनल मेड्यूला है वो इनर पोर्शन है इनर एड्रिनल ग्लैंड का, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के बीनीथ या फिर अंदर प्रेजेंट होता है। It consists of chromaffin cells that secrete catecholamines including adrenaline and noradrenaline in response to stress or sympathetic nervous system activation। मतलब हमारे बॉडी हमारे एड्रिनल मेड्यूला में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्रोमेफिन सेल्स इनका नाम होता है। ये सिक्रीट करती हैं कैटाकोलामाइंस, जिसमें कि आता है हमारा एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्राइन और नॉर एड्रेनलिन या फिर नॉर एपिनेफ्राइन। ये सिक्रीट होते हैं इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन के टाइम। Catecholamines play a crucial role in body's fight or flight response by increasing heart rate, dilating airways and redirecting blood flow to vital organs। कैटाकोलामाइंस जो है एक हमारी बॉडी में क्रूशियल रोल प्ले करती हैं इन दी सिचुएशन ऑफ फाइट और फ्लाइट। जब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में अगर के टाइम पर हमारे बॉडी से कैटाकोलामाइंस रिलीज होते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, एयरवेज को डायलेट करते हैं और रीडायरेक्ट करते हैं ब्लड फ्लो टू वाइटल ऑर्गन्स। फंक्शंस की बात करें अगर हम एड्रिनल ग्लैंड के, तो स्ट्रेस रेस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और इम्यून फंक्शन। डिसऑर्डर्स की बात करें तो एड्रिनल इनसफिशियंसी, कुशिंग सिंड्रोम और प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा हार्मोन्स नेक्स्ट हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है पैनक्रियाज। The pancreas is a crucial hormone with both endocrine and exocrine functions, located behind the stomach and nestled between the duodenum and spleen। तो हमारा जो पैनक्रियाज है ये एक ऐसा क्रूशियल ऑर्गन है जिसमें कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही फंक्शन होते हैं और इसकी लोकेशन बिहाइंड द स्टमक। तो अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये एंडोडर्मल ओरिजिन से है। लोकेशन एंड स्ट्रक्चर, तो द पैनक्रियाज इज सिचुएटेड डीप विद इन द एब्डोमेन एक्सटेंडिंग हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द अपर एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक। मतलब हमारा जो पैनक्रियाज है ये हमारे एब्डोमेन के डीप विद इन सिचुएट होता है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन इसमें देखा जाता है और ये हमारे अपर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है बिहाइंड द स्टमक। It is composed of two main parts, the exocrine pancreas and the endocrine pancreas. The exocrine pancreas. The exocrine pancreas makes up the majority of the pancreas and is responsible for producing digestive enzymes and bicarbonate। तो हमारा जो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज है वो मतलब ये मेजॉरिटी ऑफ द पैनक्रियाज, मतलब पैनक्रियाज के मेजर पार्ट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे डाइजेशन के फंक्शन में, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है और बाइकार्बोनेट को भी प्रोड्यूस करता है। यहाँ से रिलीज होने वाले जो एंजाइम्स हैं ये पैनक्रियाटिक डक्ट से रिलीज होते हैं और जाकर के कॉमन बायोडक्ट फ्रॉम जो लिवर आती है हमारी कॉमन बायोडक्ट, वहाँ पर जाकर जुड़ जाते हैं और लास्ट में ये इवेंचुअली एम्प्टी होते हैं हमारे डुओडेनम में। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि हमारे एक्सोक्राइन पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं वो उनमें से कुछ हैं एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज। एमाइलेज जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू शुगर्स, लाइपेज हमारा फैट्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और प्रोटीएज हमारे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट आता है हमारा एंडोक्राइन पैनक्रियाज। तो द एंडोक्राइन पैनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स नोन एज इलेट्स ऑफ लैंगरहैंस स्कैटर्ड थ्रू आउट द पैनक्रियाज। हमारा एंडोक्राइन पैनक्रियाज जो है वो कंसिस्ट करता है कुछ सेल्स को जिनको कहते हैं इलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये हमारे पैनक्रियाज के में स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द पैनक्रिया। These islets contain different type of hormone secreting cells including alpha cells, beta cells and delta cells। तो जो हमारे इलेट्स, ये जो इलेट्स हैं ये डिफरेंट हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स को कंटेन करती हैं
जिनमें कि आता है हमारा अल्फा सेल जो कि प्रोड्यूस करता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स जो कि प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, एंड डेल्टा सेल जो कि प्रोड्यूस करता है हमारा सोमेटोस्टेटिन. The endocrine pancreas regulate blood sugar levels by secreting hormones directly into the bloodstream, which act on various target tissues. तो हमारा जो एंडोक्राइन पैनक्रियास है ये मेनली रेगुलेट करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को, जो कि सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड, तो हार्मोन्स प्रोड्यूस जो होते हैं एंडोक्राइन पैनक्रियास से, दे आर इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टेटिन. इंसुलिन जो है प्रोड्यूस होता है बीटा सेल्स से, और ये जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल को लोअर करता है, मतलब घटाता है, टू एंश्योर द स्टीडी सप्लाई ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी सेल्स. ग्लूकागॉन जो है प्रोड्यूस होता है अल्फा सेल्स से, और ये जो है हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को रेज करता है या फिर इंक्रीज करता है बाय स्टिमुलेटिंग द लिवर टू रिलीज द स्टोर्ड ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम व्हेन द ब्लड शुगर लेवल्स आर लो. जब हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल घट जाता है तो हम ग्लूकागॉन जो है हमारे लिवर को स्टिमुलेट करता है, जो कि हमारे स्टोर्ड ग्लूकोज को रिलीज करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल. और सोमेटोस्टेटिन, नेक्स्ट सोमेटोस्टेटिन जो प्रोड्यूस होता है डेल्टा सेल्स से. सोमेटोस्टेटिन जो है इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. It also regulates pancreatic exocrine functions. तो सोमेटोस्टेटिन इन ऑल कहें तो हमारे पैनक्रियाज के फंक्शंस को रेगुलेट करता है. डिसऑर्डर्स की बात करें तो डायबिटीज मेलाइटिस, पैनक्रियाटिस एंड पैनक्रियाटिक कैंसर. नेक्स्ट आते हैं हमारे गोनैड्स. तो गोनैड्स में आएगा, गोनैड्स आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गमीट्स, जिनको कि सेक्स सेल कहते हैं, एंड सेक्स हार्मोन्स. इन ह्यूमंस द गोनैड्स आर द टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स. टेस्टिस जो है मेल गोनैड है, जिसका लोकेशन होता है द टेस्ट मतलब लोकेटेड इन द स्क्रोटम, अ सैक ऑफ स्किन हैंगिंग बिलो द पेनिस. फंक्शन की बात करें तो टेस्टिस जो है इसमें इसका फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का प्रोडक्शन, और एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन. और फीमेल्स में फीमेल गोनैड है हमारा ओवरीज, जिसका लोकेशन की बात करें तो द ओवरीज आर लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन, वन ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस. फंक्शंस की बात करें तो ओवरीज में ओवरी का फंक्शन होता है oogenesis, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ या फिर प्रोडक्शन ऑफ मीन्स फीमेल सेक्स सेल या फिर ओवा. और हार्मोन प्रोडक्शन की बात करें तो हमारा ओवरीज से दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. और हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें तो गोनैड के जो हार्मोन्स हैं ये they play crucial roles in regulating reproductive functions, sexual development and behavior. Or hormonal balance is essential for maintaining fertility, sexual function and overall health in both males and females. तो हार्मोन्स जो हैं गोनाडल हार्मोन्स जो हैं या जो कि इनको हम लोग सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं, ये एक ही बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग फर्टिलिटी, सेक्सुअल फंक्शन एंड ओवरऑल हेल्थ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में. और मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन, अगर मैं पूरे प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करूं तो द एंडोक्राइन सिस्टम प्लेज अ fundamental role in regulating physiological processes and maintaining internal balance in the body. By understanding the intricate workings of the endocrine system and its impact on health and disease, we can better diagnose, treat, and prevent endocrine disorders, ultimately improving patient outcomes and the quality of life. As we continue to unravel the complexities of endocrinology, we are poised to make further strides in healthcare, empowering individuals to live healthier, more fulfilling lives. Means अगर हम अपने
एंडोक्राइंस ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और एंडोक्राइन सिस्टम को बेटर जानेंगे तो बेटर हमारा हेल्थ केयर होगा, बेटर हमारे ईच इंडिविजुअल की लाइफ होगी और एक हेल्दी लाइफ हम कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू।